Guys, this is Zoologist AK and I am here again with the topic transcription in eukaryotes. And in this topic I will include all these points. My first point is RNA polymerase second that form a pre-initiation complex before starting the transcription process. And here when this RNA polymerase second form a pre-initiation complex, it requires some transcription factor to open up or to remodel the nucleosome so that this RNA polymerase get access to the sequence that need to be transcribed. And second point is transcription initiation requires some eukaryotic activator. So here we will talk about different types of activator and their role in the initiation of transcription in case of eukaryotes. And third point is activators also recruit and here we will understand about different function of activator. And first is recruitment or recruit a nucleosome modifier that will change or displace or replace nucleosome or modify this nucleosome that help the transcriptional machinery to bind to the promoter site so that transcription process is initiated. And fourth point is another function that is conducted by activators and this function is to recruit additional factor that need for efficient elongation or initiation at some promoters. And there are some other factor that stimulate polymerase second elongation and RNA proofreading. And sixth point is elongating RNA polymerase must deal with stones because we know that nucleosome in eukaryotes DNA present in nucleosome octet formation or nucleosome structure. So here this DNA molecule is bind with histone proteins. So when RNA polymerase will elongate or move forward to elongate the mRNA chain, it has to deal with histone proteins. And next step is elongating polymerase is associated with a new set of protein factor that are required by various type of RNA processing, means capping, splicing, etc. And the structure and formation of 5 prime RNA cap, means how does it form, and polyadenylation and termination of transcription in case of eukaryotes. And then we will study about two different types of model of termination in case of eukaryote, that is torpedo and allosteric. Now let us understand about प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कि कैसे इनिशिएशन स्टार्ट होने से पहले, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले कैसे एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के थ्रू और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के थ्रू प्रमोटर पे। जैसे कि हमें पता है कि यूकैरियोट्स के केस में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोसोम में की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि एक ऑक्टामेर है, ऑक्टेट है। तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्पैक्ट होता है कि वहाँ पे जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू बाउंड कर रखा होता है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जरूरत होती है जो बाइंड करते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रमोटर पे, ताकि जो एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो उसके और स्टार्ट कर सके एमआरएनए चेन की सिंथेसिस। सो ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है? ये है कंप्लीट सेट ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन से हैं? टीबीपी, टी स्टैंड फॉर टाटा, बी स्टैंड फॉर बाइंडिंग, पी स्टैंड फॉर प्रमोटर प्रोटीन। और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। हियर these second means RNA polymerase second, means these are transcription factor that will regulate the binding of RNA polymerase second and regulate its function in case of eukaryotes. So the complete set of general transcription factor and polymerase bound together at the promoter in case of eukaryotes. eukaryotic promoter पे जो वो bind होंगे general transcription factors plus RNA polymerase second, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जब बाइंड होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सो इन ऑर्डर टू असेंबल आरएनए पॉलीमरेज इनटू पीआईसी, पी स्टैंड फॉर प्री, आई स्टैंड फॉर इनिशिएट, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, टू इनिशिएट एमआरएनए synthesis on a fully double stranded template, and these general transcription factor are required
बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एसेस नहीं कर पाता डीएनए सीक्वेंस को, क्योंकि वो जो है न्यूक्लियोसोम की प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है इस वजह से। और ये जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है किस पे अलग होता है, मेमेलियन सेल्स में और यीस्ट में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहाँ पे ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाते हैं प्रमोटर से और एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं। और ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, प्रमोटर पे बाइंड हो जाता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको मेल्ट कर देता है, जिससे क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स जो है वो ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन डिटेल। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, जिसमें हम बात कर रहे हैं टीबीपी की। टीबीपी जो है हमारा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि टाटा सीक्वेंस से बाइंड हो जाता है। और जो ये टाटा सीक्वेंस है यहाँ पे वो कितना होता है 30 बेस पेयर लॉन्ग। और जो ये टाटा सीक्वेंस होता है ये अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, एट ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट की अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है ये टाटा कॉम्प्लेक्स। और ये जो टाटा कॉम्प्लेक्स है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी के थ्रू। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट फंक्शन ऑफ दिस डिफरेंट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की। जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है वो एसोसिएटेड होता है 10 TAF के साथ। TAF यहाँ पे स्टैंड है, T स्टैंड फॉर TBP मीन्स टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, A स्टैंड फॉर एसोसिएटेड, F स्टैंड फॉर फैक्टर्स। तो जो ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है ये एसोसिएट होता है 10 TAF के साथ, टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर्स के साथ, जिसमें से दो जो TAF हैं वो बाइंड करते हैं डीएनए एलिमेंट के साथ जो कि प्रमोटर पे प्रेजेंट होते हैं। प्रमोटर सीक्वेंस पे जो प्रेजेंट होते हैं उनसे उन डीएनए एलिमेंट से बाइंड करता है। तो वो डीएनए एलिमेंट कौन से हैं, एक तो है इनिशिएटर और एक है डीपीई डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। और डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट जब किसी प्रमोटर में प्रेजेंट होगा तो टाटा जो बॉक्स है वो क्या होगा, अपसेंट होगा। और जो TF है, जो TAF है जिससे जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएट होते हैं वो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी शो करता है हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू साथ। और जो ड्रोसोफिला के TAF4 2 एंड TAF6 ये जो टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर हैं ये होमोलॉगी शो करते हैं या सिमिलर होते हैं हिस्टोन 3 एंड हिस्टोन 4 टेट्रामर के। हिस्टोन लाइक जो टाटा बाइंडिंग एसोसिएटेड फैक्टर हैं वो फाउंड होते हैं किस किस में पाए जाते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स में और सागा कॉम्प्लेक्स में। सागा कॉम्प्लेक्स क्या है, ये हिस्टोन को मॉडिफाई करने वाला एंजाइम है। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होमोलॉगी शो करते हैं हिस्टोन 3 और हिस्टोन 4 जो टेट्रामर है उसके साथ। फिर आता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी है ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में एंटर करता है। और इससे पहले जो बाइंड करता है वो बाइंड करता है हमारा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और जब ये बाइंड कर जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी तो वहाँ पे फॉर्म हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन प्लस डीएनए कॉम्प्लेक्स मीन्स एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। और इस टर्नरी ये जो टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो स्पेसिफिक बेस स्पेसिफिक इंट्रैक्शन के थ्रू फॉर्म होता है। और ये जो बेस का जो इंट्रैक्शन है बेस मतलब इनके बेस जो हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी है और जो डीएनए के बेस पेयरिंग है इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो होता है BRE के थ्रू। बी हमारा जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट। तो जो BRE है इससे जाके ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाता है और माइनर ग्रुप में बाइंड करता है ये टाटा कॉम्प्लेक्स के डाउनस्ट्रीम में। जहाँ पे टाटा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, मान लो यहाँ पे टाटा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है तो इसके डाउनस्ट्रीम में जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उससे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड भी बाइंड होगा और अपस्ट्रीम में बाइंड होगा टाटा कॉम्प्लेक्स के वो बाइंड होगा BRE से। B स्टैंड फॉर टाटा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी, R स्टैंड फॉर रिकॉग्निशन, E स्टैंड फॉर एलिमेंट। तो ये यहाँ पे इससे बाइंड होगा। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड भी है इसका फंक्शन क्या होता है,
ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसक्रिप्शन करता है, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन करेगा 5' टू 3' वाली डायरेक्शन में। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी है वो कॉन्टैक्ट करता है पोलीमरेज सेकेंड के साथ, पोलीमरेज सेकेंड के साथ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, जब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो ये जब ये पोलीमरेज सेकेंड के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और ये डीएनए के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड है वो ब्रिज का काम कर रहा है टाटा सीक्वेंस के साथ जो कि डीएनए में प्रेजेंट है, और टाटा से बाउंड जो हमारा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है उसके बीच में और आरएनए पॉलीमरेज के बीच में ये एक ब्रिज का काम कर रहा है। कौन, हमारा, जैसे कि यहाँ पे एक डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा BRE और यहाँ पे प्रेजेंट होगा टाटा सीक्वेंस, और टाटा सीक्वेंस के बाद होगी स्टार्ट साइट, और फिर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे हमारे डाउनस्ट्रीम जो एलिमेंट होंगे, डाउनस्ट्रीम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ये जो टाटा से बाइंड होगा TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और टाटा बाइंडिंग, और जो भी यहाँ पे बाइंड होगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो इनके बीच में जो ब्रिज का काम करेगा वो ब्रिज का काम करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड भी। और ये किससे बाइंड होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है यहाँ पे टाटा बाइंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड भी रिकॉग्नाइजेशन एलिमेंट, और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम जो एलिमेंट है उनके साथ। तो ये क्या करता है, जो सेगमेंट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी में वो सिमिलर सेगमेंट हो जाते हैं, जैसे 3 और 4 जो सिग्मा सब यूनिट थे उसके रीजन थे उनकी तरह ही ये सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड पे, क्योंकि इसकी जो एक सब यूनिट होती है वो तो लाई करती है एक्टिव क्लेफ्ट में, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के जो एक्टिव क्लेफ्ट होता है जहाँ पे जो राइबोन्यूक्लियोटाइड आके बाइंड होती हैं और एमआरएनए चेन की सिंथेसिस होती है, तो वहाँ पे एक्टिव क्लेफ्ट में ये लाई करता है। और एक जो इसका पार्ट होता है वो लाई करता है इन एग्जिट चैनल में, जहाँ से आरएनए जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एग्जिट करती है, वहाँ पे ये लाई करता है। तो ये जो दो रीज़न है कि जो TBF सेकेंड के एक रीजन तो आरएनए एग्जिट चैनल में लाई कर रहा है और एक आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के एक्टिव क्लेफ्ट में लाई कर रहा है। तो एक्टिव क्लेफ्ट में लाई कर रहा है उसको तो हम बोलेंगे रीडर सीक्वेंस रीजन, और जो आरएनए एग्जिट चैनल में लाई कर रहा है उसको लिंकर, मीन्स लिंकर एंड रीडर रीजन फॉर्म करेगा ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी। और ये क्या करेगा, ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, और ये ओपन कॉम्प्लेक्स को तब तक स्टेबलाइज करेगा जब तक आरएनए और डीएनए हाइब्रिड नहीं फॉर्म हो जाता। आरएनए डीएनए हाइब्रिड फॉर्म नहीं हो जाता तब तक ये ओपन कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी के बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ। सेकेंड एफ का रोल होता है, ये स्टेबलाइज करता है डीएनए एंड टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी। ये टर्नरी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है इस टर्नरी कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ। और फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई जो है, और ये क्या काम करता है, इसकी दो सब यूनिट होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो ई है इसकी दो सब यूनिट होती हैं, जो रिक्रूटमेंट करेगा और रेगुलेट करेगा। किसको रेगुलेट करेगा और किसको रिक्रूटमेंट करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच को रिक्रूट करेगा और उसको ही रेगुलेट करेगा। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच है इसके दो फंक्शन होते हैं और दो सब यूनिट तो होती हैं इसकी 10 सब यूनिट होती हैं सबसे, और इसका जो मोलिकुलर मास है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के जितना होता है, मीन्स ये एक लार्ज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच है इसकी 10 सब यूनिट होती हैं, और इसमें जो दो सब यूनिट होती हैं वो है एक तो एटीपीज एक्टिविटी होती है एक सब यूनिट की, और दूसरी सब यूनिट की होती है काइनेज एक्टिविटी। काइनेज जो है आरएनए पॉलीमरेज में जो 7 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं सीरीन एंड थ्रोरीन वाली साइड पे, ये सेकेंड सीरोनिन पे और 5th वाली जो सीरोनिन है वहाँ पे फॉस्फोरिलेशन का काम करता है, जिसकी वजह से दो मैकेनिज्म होते हैं। एक तो होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर पर स्टेशनरी स्टेज में प्रेजेंट है वो प्रमोटर से हटके वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है और इलोंगेशन हो जाती है, और एटीपीज का काम है यहाँ पे ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच है वो कैसे फॉर्म करता है, हाउ डज इट मेल्ट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो ये एटीपीज एक्टिविटी के थ्रू मेल्ट करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। कैसे करता है, जो सब यूनिट होती है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच की, ये क्या करती है
ट्रांसलोकेट कर देती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। इसकी जो सब यूनिट है, ये डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वहाँ पे डाउन, यहाँ पे स्टार्ट साइड में हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, उसके यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जो डाउन स्ट्रीम एलिमेंट है वहाँ पे जाके ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच बाइंड कर जाएगा और ये फीड करेगा किसको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, जिसकी वजह से मेल्टिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मेल्टिंग? क्योंकि जो अपस्ट्रीम डीएनए एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, अपस्ट्रीम डीएनए एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, इस डीएनए को फिक्स्ड पोजीशन में हेल्ड करेंगे। किसको? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी को, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी को एक फिक्स्ड पोजीशन में हेल्ड करेंगे, जिसकी वजह से, और अदर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे उनको फिक्स्ड पोजीशन में हेल्ड करेंगे, जिसकी वजह से मेल्टिंग हो जाएगी। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये पिक्चर शो की गई है, ये है हमारी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को शो करिए। यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है ना, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है जो कि वॉयलेट कलर में शो किया गया है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है इसके लिए प्रमोट होता है टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स को, टाटा एलिमेंट को ही रिकॉग्नाइज करता है, जो कि 30 बेस पेयर लॉन्ग होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो स्टार्ट साइड होती है उसके अप स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है टाटा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे स्टार्ट साइड होगी मान लें, तो यहाँ पे हमारा टाटा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, अप स्ट्रीम में प्रेजेंट होगा। तो जो ये टाटा सीक्वेंस है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी के थ्रू। और ये क्या है? मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है। कौन सा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी जो है। और ये क्या है? इसका जो कंपोनेंट होता है वो बाइंड कर जाता है टाटा सीक्वेंस से। और इसका कंपोनेंट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी का कंपोनेंट क्या है? TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इसका कंपोनेंट है। किसका? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी का, जो बाइंड हो जाए टाटा बॉक्स में, जो कि प्रमोटर पे प्रेजेंट है। और ये जो अदर सब यूनिट कौन सी है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी की? वो है टाटा एसोसिएटेड फैक्टर। और ये किससे बाइंड हो जाएंगी? ये बाइंड हो जाएंगी इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स के साथ, और डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट के साथ, और डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट के साथ, और डाउन स्ट्रीम ODCE के साथ। और यहाँ पे जो स्ट्रोंगेस्ट बाइंडिंग है वो किसके बीच में होगी? TBP के बीच में, जो कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, और टाटा सीक्वेंस के बीच में। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है वहाँ पे क्रिटिकल फैक्टर क्या है प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को स्टैब्लिश करने में? वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी। और जब ट्रांसक्रिप्शन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हो जाता है टाटा बाइंड पे, तो ये डिस्टोर्ट कर देता है। क्या कर देता है? डिस्टोर्ट कर देता है टाटा सीक्वेंस को। कौन? TBP। तो जो ये TBP है ये डिस्टोर्ट करता है टाटा सीक्वेंस के, जिसकी वजह से TBP डीएनए कॉम्प्लेक्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। TBP और डीएनए सीक्वेंस या डीएनए कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हो रहा है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए और पॉलीमरेज के लिए, ताकि वो आगे प्रमोटर से बाइंड हो जाए। और जो ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वे एक सीक्वेंस में बाइंड कर जाते हैं प्रमोटर से। सबसे पहले बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए, देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड F, एंड देन टुगेदर विद RNA पॉलीमरेज। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए, फिर देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड F अलोंग विद RNA पॉलीमरेज सेकंड। उसके बाद बाइंड होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड E और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H, जिसकी ATPase एक्टिविटी होगी और काइनेज एक्टिविटी होगी। फिर ये फॉर्मेशन कर देगा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पे क्या होगा? ये प्रमोटर की मेल्टिंग कर देंगे, जिसकी वजह से ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। और ये मेल्टिंग किसके थ्रू करी जा रही है? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H की एक सब यूनिट है जिसकी ATPase एक्टिविटी है, वो मेल्टिंग कर रही है और ओपन कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर रही है और स्टेबलाइज कर रही है तब तक DNA और RNA हाइब्रिड फॉर्म नहीं हो जाता तब तक। Now we understand about how the pre-initiation complex formation, कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन स्टार्ट होने से पहले एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, क्या रोल होता है डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, जिसको हम जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की, जहाँ पे रोल प्ले करता है एक्टिवेटर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स? सम मेडिएटर्स एंड सम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उनकी जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? एक्टिवेटर्स के थ्रू। तो ये जो एक्टिवेटर्स हैं वो क्या हैं? एक्टिवेटर्स एक ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है, एक प्रोटीन है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बोल देते हैं, जो क्या करता है? जीन के एक्सप्रेशन को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। और जो ये एक्टिवेटर होते हैं ये मोस्टली DNA बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, जो बाइंड करेंगे एनहेंसर से और प्रोमोटर प्रोक्सिमल एलिमेंट, जैसे कि
यहाँ पे एक जीन सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जो ट्रांसक्राइब करना है, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा एनहेंसर। एनहेंसर भी सिस एक्टिंग मोलिक्यूल होते हैं और ये डीएनए सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। तो इससे आगे कुछ एक्टिवेटर बाइंड करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है, वो रिप्रेशर भी हो सकता है, वो आके इस एनहेंसर से बाइंड करेगा, और ये एनहेंसर कुछ अपस्ट्रीम में कुछ बेस पेयर डिस्टेंस कुछ बेस पेयर अवे प्रेजेंट होते हैं इस सीक्वेंस के जो ट्रांसक्राइब करना है, और ये रेगुलेट कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन इस पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस का। तो ये एक्टिवेटर होते हैं, ये कैसे स्टिमुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन एक पर्टिकुलर जीन का। ये स्टिमुलेट करते हैं जैसे कि यहाँ पे ये एक डीएनए एलिमेंट है जहाँ पे यहाँ पे या तो प्रोक्सिमल प्रमोटर प्रोक्सिमल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे या फिर एनहेंसर प्रेजेंट होंगे। तो ये जो एक्टिवेटर है इनका एक जो साइड होती है वो तो बाइंड हो जाती है एनहेंसर से या फिर प्रमोटर प्रोक्सिमल एलिमेंट से, और दूसरी साइड जो होती है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से बाइंड हो जाती है। इस तरह ये रिक्रिएट कर देते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को उस पर्टिकुलर जीन में जिसको ट्रांसक्राइब होना है। तो यूकैरियोटिक जो एक्टिवेटर हैं वो डायरेक्ट इंटरेक्शन भी कर सकते हैं इन एक्टिवेटर्स के साथ जो कि एनहेंसर्स होंगे, और क्या कर सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ भी डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। जो रोल क्या है इन एक्टिवेटर्स का, ये एक्टिवेटर्स क्या करते हैं रिक्रूट करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को, इनडायरेक्टली भी रिक्रूट कर सकते हैं और अदर फैक्टर्स को भी रिक्रूट कर सकते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करेंगे किस पे, उस सीक्वेंस पे, उस स्टार्ट साइड पे जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होना होगा और उस पर्टिकुलर जीन पे जिसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। सो एक्टिवेटर क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के साथ इंटरेक्ट करते हैं अदर देन पॉलीमरेज, एंड बाय रिक्रूटिंग दैम आल्सो रिक्रूट पॉलीमरेज। मीन्स जो एक्टिवेटर हैं वो एक ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के साथ एक्टिवेट करेंगे और वो मशीनरी आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरेक्ट करेगी, और इस तरह जो एक्टिवेटर है वो आरएनए पॉलीमरेज की रिक्रूटमेंट कर देते हैं स्टार्ट साइड पे जो कि प्रमोटर सीक्वेंस में प्रेजेंट होती है उस जीन के जो जीन ट्रांसक्राइब करना है। सो यहाँ पे जो एक्टिवेटर्स हैं वो क्या करते हैं डिफरेंट मॉडिफायर्स को ऐड करते हैं, जैसे न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं क्रोमेटिन को, जो क्रोमेटिन कहाँ पे होगा इन द विसिनिटी ऑफ प्रमोटर, उस प्रमोटर पे जो जीन हमें ट्रांसक्राइब करना है मॉडिफाई कर देगा उस क्रोमेटिन सीक्वेंस को एंड हेल्प करेगा इनिशिएशन में। तो ये क्या कर सकता है न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स की तरह काम करते हैं, और ये क्या करते हैं कुछ फैक्टर्स को क्या कर देते हैं रिक्रूट कर देते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को ये और मेडिएटर्स को रिक्रूट कर देते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करवाते हैं और इनिशिएट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को, एलोंगेशन करेंगे एमआरएनए चेन की, और टर्मिनेशन करेंगे। तो मीन्स ये डिफरेंट टाइप्स के मेडिएटर्स को जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिक्रूट करेगा, और ये रिक्रूट करेंगे कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को जो स्टिमुलेट करते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की इनिशिएशन और एलोंगेशन, जैसे PTEFB। यहाँ पे जो PTEFB है ये एक साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेज है जो फॉस्फोरिलेट करता है सीरिन एंड थ्रियोनिन को। ये क्या है अमाइनो एसिड है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है CDT पे। CDT जो टेल है आरएनए पॉलीमरेज की और जो सब यूनिट है आरएनए ये जो CD कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है जो बाइंड करता है हमारा टाटा सीक्वेंस से, और ये बाइंड होता है हमारा जो अमाइनो टर्मिनल डोमेन उनसे फ्लेक्सिबल लिंकर के थ्रू। तो ये जो CTD टेल है उसमें प्रेजेंट होते हैं सीरिन एंड थ्रियोनिन, वहाँ पे फॉस्फोरिलेशन का काम करता है PTEFP। और ये सैक कॉम्प्लेक्स क्या करता है रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन को इन केस ऑफ डिजीज पैथोजेनेसिस। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के रोल हैं जो जो एक्टिवेटर परफॉर्म करता है। सो एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या रिक्वायरमेंट है इन एडिशनल प्रोटीन्स की, लाइक जैसे न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स हैं या फिर जो अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ये जो मेडिएटर हैं, तो इन एडिशनल प्रोटीन की जो रिक्रूटमेंट है इनकी क्या ज़रूरत है। ये ज़रूरी है डीएनए टेम्पलेट पे बाउंड करने के लिए जो कि क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में बाउंड है। डीएनए टेम्पलेट क्रोमेटिन में प्रेजेंट है। क्रोमेटिन क्या है यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस प्लस डीएनए और बेस पेयर जो हैं वो बाउंड हो रहे हैं यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के साथ, तो वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, और वहाँ पे जब तक ये मेडिएटर
और अदर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं बाइंड होंगे तो ये स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे उनकी आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को। दिस रिक्वायरमेंट इज मेडिएटेड थ्रू इंटरेक्शन, किसके बीच में, डीएनए बाउंड जो एक्टिवेटर्स हैं, डीएनए से जो बाइंड हैं एक्टिवेटर्स लाइक एनहेंसर्स हैं भाई, और या फिर प्रोक्सिमल प्रमोटर प्रोक्सिमल एलिमेंट है उनके साथ, और क्रोमेटिन बाइंडिंग जो फैक्टर्स या रिमॉडलिंग फैक्टर जो कि इन एनहेंसर मॉलिक्यूल से आके बाइंड कर जाएंगे और रीमॉडलिंग कर देंगे न्यूक्लियोसोम की, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, वो क्रोमेटिन जो है वो ओपन अप हो जाएगा, क्रोमेटिन टेम्पलेट ओपन अप हो जाएगा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज इजीली बाइंड कर जाएगा। तो यहाँ पे जो मेडिएटर होते हैं ये एसोसिएट होते हैं बेसल ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के साथ, और ये जो मेडिएटर्स हैं ये टच करते हैं सीटीडी टेल को। सीटीडी क्या, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल टेल, और ये किस में प्रेजेंट होती है, लार्ज सब यूनिट में आरएनए पॉलीमरेज की। डिफरेंट एक्टिवेटर्स इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट मेडिएटर्स के साथ ताकि ये किसको ले आए, आरएनए पॉलीमरेज को डिफरेंट जीन पे बाइंड कर पाए ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो पाए। सो अगर इंडिविजुअल सब यूनिट है मेडिएटर की वो डिलीट हो जाती है तो जो कोई पर्टिकुलर जीन है उसके एक्सप्रेशन को सुप्रेस कर देती है ये, अगर डिलीशन हो जाता है किसी भी मेडिएटर सब यूनिट का, क्योंकि डिफरेंट सब यूनिट बाइंड करती हैं डिफरेंट मेडिएटर्स के साथ, सॉरी डिफरेंट एक्टिवेटर्स के साथ, और जिसके थ्रू वो पॉलीमरेज को डिफरेंट जीन पे रिक्रूट करती है, जिसके थ्रू ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो अगर डिलीशन हो गया मेडिएटर की सब यूनिट में तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन है एक पर्टिकुलर जीन का वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे जो मेडिएटर है वो क्या कर रही है, जो मेडिएटर है वो रिक्रूट कर रहा है क्या, और ऐड कर रहा है इनिशिएशन बाय रेगुलेटिंग सीटीडी और कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन काइनेज एक्टिविटी को, किसमें, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच में। जैसे कि हमने पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड है उसकी दो सब यूनिट होती हैं कि एटीपीएस एक्टिविटी करता है, काइनेज एक्टिविटी करता है। तो जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि एक ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के साथ एक्टिवेटर जो है वो इंटरेक्ट करता है, मतलब एक ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी होती है उसके साथ एक्टिवेटर इंटरेक्ट करता है और आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट कर देता है टाटा सीक्वेंस पर स्टार्ट साइड पे। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है उसमें क्या होता है, मेडिएटर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंडरी, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंडरी में दो सब यूनिट होंगी टीएफ के लिए, और कंपोनेंट होगा दो कंपोनेंट होंगे टीएफ सेकेंडरी के, टीएफ और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, ये दो कंपोनेंट होंगे। तो जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है वो इंक्लूड करती है मेडिएटर एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंडरी, और जो एक्टिवेटर्स है और जो एक्टिवेटर है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है इस कॉम्प्लेक्स के साथ, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के साथ वो इंटरेक्ट करता है और रिक्रूट कर देता है उनको किस पे, जीन पे, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है कि टाटा कॉम्प्लेक्स पे वो जाके रिक्रूट हो गए हैं। और जो ये रिक्रूटमेंट है वो विजुअलाइज करी जाती है चिप टेक्निक के थ्रू। जो चिप है वो क्या है, क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन जो प्रोसेस है इसके थ्रू। ये टेक्निक क्या रिवेल करती है, ये रिवेल करती है व्हेन ए गिवन प्रोटीन बाइंड टू ए डेफिनेट रीजन ऑफ डीएनए विद इन ए सेल, मीन्स कि कब एक गिवन प्रोटीन है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें मेडिएटर की और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, ये कब बाइंड होंगे एक डेफिनेट रीजन पे, जैसे कि यहाँ पे टाटा बॉक्स है उस पर ये कब बाइंड होंगे। तो ये जो रिवेल करती है वो करती है चिप के थ्रू, चिप स्टैंड फॉर क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे जो मशीनरी है, यहाँ पे जो एक्टिवेटर है वो एनहेंसर के साथ बाइंड हो रखा है और वो रिक्रूट कर रहा है इस ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी को, और ये ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी इंक्लूड करती है मेडिएटर एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंडरी, और ये तभी रिक्रूट करी जाती है जब ये जो जीन है जिस पे वो रिक्रूट करी जा रही है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म में हो। तो यहाँ पे जो एक्टिवेटर का रोल है वो यहाँ पे बस रिक्रूट करना है, ना कि जीन को एक्टिवेट करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ एक्टिवेटर्स। तो जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है, इस पिक्चर में यहाँ पे एक सिंगल एक्टिवेटर है, सिंगल एक्टिवेटर रिक्रूट कर रहा है दो टारगेट को, एक टारगेट है मेडिएटर, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंडरी और अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। ये मैं जो पार्ट है मेडिएटर के, और पॉलीमरेज सेकेंड और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी ये सेपरेटली क्या हो रहे हैं, रिक्रूट हो रहे हैं। मीन्स ये मेडिएटर और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सेपरेटली रिक्रूट हो रहा है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेपरेटली रिक्रूट हो रहा है, और सिंगल एक्टिवेटर यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहा है इन ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी की। नाउ सेकेंड रोल ऑफ एक्टिवेटर्स इज टू रिक्रूट
टू रिक्रूट न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स, मीन्स न्यूक्लियोसोम को मॉडिफाई कर देंगे ताकि जो प्रमोटर है वो ओपन हो सके, ताकि उस पर आरएनए पॉलीमरेज इजीली आके बाइंड कर सके और इनिशिएट कर सके ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे हम जो न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो करते हैं केमिकल ग्रुप को ऐड, किस पे? हिस्टोन जो प्रोटीन होता है उस पर केमिकल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। ये जो ब्लू फ्लैग यहाँ पे शो कर रहे हैं वो शो कर रहे हैं हिस्टोन टेल को। तो हिस्टोन टेल पे यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऐड किया गया है, किस एंजाइम के थ्रू? HTA हिस्टोन ट्रांस एसिटाइलेज जो एंजाइम है उसके थ्रू यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऐड किया गया है टेल पे हिस्टोन प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से क्या हो गया है? हिस्टोन एसिटाइलाइजेशन हो गई है और जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीन जो न्यूक्लियोसोम है वो रीमॉडल हो गया है, जिसके थ्रू जो सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस, क्रोमेटिन टेम्पलेट जो है वो ओपन अप हो गया है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी इजिली बाइंड कर गई है प्रमोटर साइट पे, और आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड कर गया है प्रमोटर साइट पे। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी में क्या होता है? आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है वो रिक्रूट करती है आरएनए पॉलीमरेज को इनडायरेक्ट वे में। तो यहाँ पे एक तो जो 2 टाइप से एक्टिवेटर रोल प्ले करते हैं, एक जो एक्टिवेटर रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ पे वो केमिकल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, और दूसरे यहाँ पे ऐड जो रोल प्ले करते हैं वो एटीपीएस एक्टिविटी, एटीपी डिपेंडेंट एक्टिविटी के थ्रू रिमॉडल करते हैं न्यूक्लियोसोम को। कैसे? वो यहाँ पे जो एटीपी डिपेंडेंट एक्टिविटी की जाती है वो SVNF के थ्रू करी जाती है, SWI और SNF के थ्रू की जाती है। ये क्या करते हैं? एटीपी डिपेंडेंट एक्टिविटी करते हैं, जिसके थ्रू ये डिस्प्लेस कर देते हैं न्यूक्लियोसोम को और रीमॉडल कर देते हैं न्यूक्लियोसोम के, जिसके थ्रू ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी प्रमोटर से ईजिली बाइंड हो जाती है और वो क्या कर देती है? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कर देती है। Now a question arises, how do these modification help to activate a gene? So there are 2 basic model to explain this, कि कैसे चेंज होता है न्यूक्लियोसोम में और वो कैसे हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी का टू बाइंड एट द प्रमोटर साइट एंड टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे 2 मॉडल हैं। फर्स्ट मॉडल तो होता है अनकवर डीएनए बाइंडिंग साइट। पहला मॉडल क्या करता है? अनकवर कर देता है डीएनए बाइंडिंग साइट को, सो डैट जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है वो इजीली बाइंड कर सके डीएनए पे। दूसरा मॉडल है क्या करना? अल्टर करना, लूज अप क्रोमेटिन स्ट्रक्चर और फ्री अप क्रोमेटिन जो टेम्पलेट है। तो क्या करता है? लूज कर देता है किसको? क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से प्रमोटर पे इजीली ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी बाइंड हो जाती है। तो फर्स्ट जो हमारा अनकवर होता है डीएनए बाइंडिंग साइट वो की जाती है रिमूव करके और इंक्रीज करके मोबिलिटी किसकी? न्यूक्लियोसोम की। और ये कैसे की जाती है? रीमॉडलर्स के थ्रू। रीमॉडलर्स क्या कर देते हैं? फ्री अप कर देते हैं बाइंडिंग साइट, ताकि ईजिली रेगुलेटर और ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी ईजिली आके बाइंड हो सके। और दूसरा जो मॉडल है वो है लूज करना क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को और फ्री करना प्रमोटर साइट को, और ये की जाती है एसिटाइल ग्रुप को ऐड करके। एसिटाइल ग्रुप जब ऐड हो जाता है हिस्टोन टेल पे तो वो क्या कर देता है? इंटरेक्शन अल्टर कर देता है हिस्टोन टेल के साथ के बीच में और जो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम है उसके बीच में, जिसकी वजह से ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है या क्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है? लूज अप हो जाता है, ओपन अप हो जाता है, जहाँ पे प्रमोटर साइट पे ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी इजीली आके बाइंड कर जाती है। और ये स्पेसिफिक बाइंडिंग करती है ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी की न्यूक्लियोसोम पे, ताकि जो स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है वो स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है ब्रोमोडोमेन के थ्रू, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी की और वो क्या कर देगा? ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर देगा। तो जो ये यहाँ पे हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज हैं, ये क्या करते हैं? एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं हिस्टोन टेल पे, जिसके थ्रू वो जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसके थ्रू जो न्यूक्लियोसोम है उस पर एक प्रोटीन बाइंडिंग साइट क्रिएट होती है ब्रोमोडोमेन के लिए, और जो ब्रोमोडोमेन कॉम्प्लेक्स है वो बियर किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंडरी के थ्रू। इसलिए जो एसिटाइलेटेड जो न्यूक्लियोसोम है इस पर जो आके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंडरी क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा, और इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ये जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है ये हायर एफिनिटी के थ्रू इस एसिटाइलेटेड न्यूक्लियोसोम पे बाइंड कर जाएगा।
और अदर जो प्रोटीन बाइंडिंग साइट ओपन होंगी न्यूक्लियोसोम में होंगी क्रोमोडोमेन, जो रिकॉग्नाइज करी जाएंगी, जो रिकॉग्नाइज करेंगी अदर प्रोटीन जो होंगे, जो अदर रेगुलेटर प्रोटीन जो होंगे वो कंसिस्ट करेंगे क्रोमोडोमेन। जैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक ब्रोमोडोमेन कॉम्प्लेक्स को कंसिस्ट कर रहा है, ऐसे ही अदर रेगुलेटरी जो प्रोटीन होंगे वो क्रोमोडोमेन को कंसिस्ट करेंगे, जो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर देगा मिथाइलेटेड न्यूक्लियोसोम में, जिस पे हिस्टोल चेन पे मिथाइल ग्रुप बाइंड होगा। यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप बाइंड है तो यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप रिकॉग्नाइज किया गया ब्रोमोडोमेन कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जो कि प्रेजेंट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी में। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है इन टेल पे, हिस्टोन टेल पे, तो यहाँ पे क्रोमोडोमेन के थ्रू वो रिकॉग्नाइज कर दिया जाता और मॉडिफाई कर दिया जाता, ये न्यूक्लियोसोम रिमॉडल्ड कर दिया जाता, जिसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी इजली और हायर एफिनिटी के थ्रू बाइंड हो जाती और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देती। नाउ कम टू द थर्ड फंक्शन of activators or third role of activators. It recruit additional factors needed for efficient initiation और elongation at some promoter। और elongation के लिए जो RNA polymerase की CTD सब यूनिट होती है और जो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन होता है वो फॉस्फोरिलेट करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है हीट शॉक प्रोटीन 70 का, और ये जीन लिया गया है ड्रोसोफिला से। ये एक्टिवेट किया जाता है हीट शॉक के थ्रू, और ये कंट्रोल किया जाता है, जो हीट शॉक प्रोटीन 17 जीन है ये कंट्रोल किया जाता है दो एक्टिवेटर्स के थ्रू। एक एक्टिवेटर यहाँ पे है गागा और सेकंड एक्टिवेटर है HSF। तो यहाँ पे जो HSF है, जो सेकंड एक्टिवेटर, ये बाइंड करता है स्पेसिफिक प्रमोटर से जाके बाइंड कर जाता है, रिक्रूट कर देता है एक PTEFB काइनेज, एक साइक्लिक काइनेज को। और ये क्या करता है, पॉजिटिव इलोंगेशन फैक्टर, मीन्स ये इलोंगेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, जो CTD सब यूनिट है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन जो सब यूनिट है, उसको फॉस्फोरिलेट कर देता है। उसको फॉस्फोरिलेट करने के बाद ये क्या करता है, जो RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पे ही बाइंड हो जाता है और स्टॉल हो जाता है, रुक जाता है वहीं पे स्टेशनरी फॉर्म में, उसको आगे प्रोसीड कर देता है, जिससे क्या हो जाती है, इलोंगेशन प्रोसेस हो जाती है। तो ये स्टालिंग को क्या करता है, इनहिबिट करता है। अगर ये सेकंड एक्टिवेटर जो कि HSF है ये अब्सेंट होगा ना, तो पॉलीमरेज स्टॉल कर जाएगा 25 to 50 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द प्रमोटर। अगर यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट है तो उसके डाउन स्ट्रीम में वो क्या कर जाएगा, स्टॉल कर जाएगा अबाउट 25 to 50 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो PTEFB काइनेज है वो एक पार्ट है लार्ज कॉम्प्लेक्स आर, वो कॉम्प्लेक्स है SEC कॉम्प्लेक्स। ये एक इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स है, ये रिलीज करता है और पोस्ट किसको रिलीज करता है, पोस्ट RNA पॉलीमरेज को, जो पोज हो गया है प्रमोटर साइट पे, पोज हो गया जो उसको क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ पे दो फैक्टर के रोल होते हैं, एक तो होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H और एक रोल होता है PTEFB काइनेज का। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H है वो CTD जो सब यूनिट होती है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन जो होता है, उसकी सीरीन 5th को क्या कर देता है, फॉस्फोरिलेट कर देता है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। और ये क्या है, हेप्टेट रिपीट का, क्योंकि जो 7 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं CTD में, उसमें जो 5th पोजीशन पे जो सीरीन प्रेजेंट होगा अमाइनो एसिड, उसमें ये क्या कर लेगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा, उसके फॉस्फोरिलेशन कर देगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H। और जो ये PTEFB काइनेज है जो रिक्रूट किया गया है HSF के थ्रू। HSF क्या है, एक एक्टिवेटर है किसका, HSP70 जीन का, जो किस में प्रेजेंट है, ड्रोसोफिला में। और ये क्या करता है, फॉस्फोरिलेशन करता है सीरीन 2 की, जो सीरीन 2 किस में प्रेजेंट है, हेप्टेट में, और हेप्टेट रिपीट में जो किस में प्रेजेंट है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन में, लार्ज सब यूनिट की, RNA पॉलीमरेज की लार्ज सब यूनिट में जो प्रेजेंट है उस पर ये फॉस्फोरिलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक्टिवेटर्स क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरिलेशन कर रहे हैं। तो ये जो पिक्चर शो कर रही है यहाँ पे, ये शो कर रही है पोजिंग और रिलीज किसका, RNA पॉलीमरेज का। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो प्रमोटर साइट है वहाँ पे RNA पॉलीमरेज क्या हो गया है, पोज्ड हो गया है, मीन्स वहीं पे स्टेशनरी फॉर्म में वो रुक गया है। तो यहाँ पे जब दो एक्टिवेटर एक्ट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H और PTEFB काइनेज, तो वो फॉस्फोरिलेशन कर रहे हैं सीरीन 2 पे और सीरीन 5 पे, और जो हेप्टेट
रिपीट प्रेजेंट है कार्बोक्सी डोमेन लार्ज सब यूनिट में जो आरएनए पॉलीमरेज की है उसमें यहाँ पे सीरीन 2 एंड सीरीन 5 पे ये फोस्फोरिलेशन कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एंड पीटीईएफ बी काइनेस। इस फोस्फोरिलेशन की वजह से जो ये पॉलीमरेज है ये इसकी पोजिंग और इसकी जो स्टॉलिंग है वो रिमूव कर दी जाती है, वो हट जाती है। इसके थ्रू ये क्या कर जाता है, इलोंगेशन में एंटर कर जाता है और यहाँ पे ये क्या कर देता है, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। और यहाँ पे जो ये NELF है ये क्या है, एक पोजिंग मेडिएटर है जो कि पोज कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे पोज कर रहा है प्रमोटर साइड पे। जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे S5 जो है वो ऑलरेडी फोस्फोरिलेटेड है, फिर भी यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो पोजिंग स्टेट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H है वो फोस्फोरिलेशन कर देता है 5th सीरीन अमाइनो एसिड पे, पर फिर भी जो पॉलीमरेज है वो पोज्ड ही स्टेट में रहता है जब तक कि सेकेंड जो सीरीन है उसमें फोस्फोरिलेशन नहीं हो जाती। और वो तब की जाती है जब ये तब की जाती है जब HSF एक्टिवेटर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है हीट शॉक के थ्रू, और ये सिक्रेट करता है इस सेक कॉम्प्लेक्स की कंपोनेंट को जो कि है PTEF बी काइनेज। और ये जो एंजाइम है ये ऐड कर देता है यहाँ पे S2 जो सीरीन सेकेंड अमाइनो एसिड उस पर फॉस्फेट ग्रुप को, जिसके थ्रू ये जो यहाँ पे पोजिंग मेडिएटर है NELF ये रिमूव हो जाता है और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो यहाँ पे एक काइनेज का मेन रोल होता है और फोस्फेटेज का। काइनेज क्या करेगी, फोस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगी, और जब स्टॉलिंग करनी होगी आरएनए पॉलीमरेज को तो यहाँ पे फोस्फेटेज एंजाइम एक्ट हो जाएगा और जिसके थ्रू स्टॉलिंग हो जाएगी आरएनए पॉलीमरेज के लिए। ये पोस्ट स्टेट दिखाई गई है, ये ऑन स्टेट दिखाई गई है। A new set of factors stimulate polymerase second elongation and RNA proofreading। मीन्स यहाँ पे जो पोलीमरेज सेकेंड की इलोंगेशन हो रही है, मीन्स वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और इलोंगेट कर देगा mRNA चेन को, एंड आरएनए की जो प्रूफ रीडिंग हो रही है, मीन्स जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं वो करेक्टली बेस पेयर फॉर्म हुए हैं हमारे चेन में या नहीं, तो वो प्रूफ रीडिंग जो प्रोसेस है वो नए फैक्टर्स के थ्रू की जाती है। और ये जो वेरियस फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं प्रूफ रीडिंग में और आरएनए प्रोसेसिंग में, ये रिक्रूट किए जाते हैं कार्बोक्सिलिक टर्मिनल डोमेन जो है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज की लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होता है और इसको कहते हैं कि CTD टेल भी बोला जाता है। तो इस पे जो फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके थ्रू ये रिक्रूट करे जाते हैं डिफरेंट फैक्टर्स। तो ये जो रिक्रूटमेंट है डिफरेंट फैक्टर्स की, ये इन्वॉल्व होती है इलोंगेशन में, ट्रांसक्रिप्शन की और आरएनए प्रोसेसिंग में। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द फोस्फोरिलेशन स्टेट ऑफ टेल, कि यहाँ पे फोस्फोरिलेशन दो साइड पे होती है, यहाँ पे कैपिंग एंजाइम ऐड हो रहा है, यहाँ पे एक साइड पे होती है तो स्प्लाइसिंग मशीनरी हो रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो फोस्फोरिलेशन हुई है तो यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेशन हो रखी है। तो ये रिक्रूटमेंट जो हो रही है डिफरेंट फैक्टर्स की वो केस कॉज की जाती है फोस्फोरिलेशन स्टेट के थ्रू, और वो फोस्फोरिलेशन स्टेट है टेल की। CTD जो टेल प्रेजेंट है लार्ज सब यूनिट में पॉलीमरेज सेकेंड के, उसके थ्रू रिक्रूटमेंट हो रही है डिफरेंट फैक्टर्स की। तो यहाँ पे जो इलोंगेशन फैक्टर है HSPT5 ये इलोंगेशन में रोल प्ले करता है, और ये तब रिक्रूट किया जाता है जब फोस्फोरिलेशन हो जाएगी सीरीन 5 में, मीन्स जो सीरीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है 5 पोजीशन में CTD में, उस पे यहाँ पे दिखा रखा है फोस्फोरिलेशन स्टेट ऑफ CTD टेल, और यहाँ पे दिखा रखा है स्टेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी फोस्फोरिलेशन नहीं हो रखी तो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और आरएनए की प्रोसेसिंग अपसेंट होगी, क्योंकि जब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हो रखा है तो mRNA चेन सिंथेसाइज नहीं होगी। और जब यहाँ पे 5th पोजीशन पे हमारा जो फोस्फोरिलेशन हो जाएगी, फोस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे 5th पोजीशन पे ऐड करता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H, जिसके थ्रू जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर से एस्केप कर जाता है और इलोंगेशन में एंटर कर जाता है। और तो यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर कौन सा एक्ट करेगा, HSPT5, और ये रिक्रूट कर देगा टेल जो सीरीन 5 है उसकी टेल को फोस्फोरिलेट कर देगा। और यहाँ पे कैपिंग जो है mRNA जो चेन है उसकी कैपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब जो सीरीन 2 है उस पर जब
फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, जो कि किया जाता है PTEFB एंजाइम के थ्रू, जो कि एक काइनेज है PTEFB एंजाइम के थ्रू सीरीन सेकंड जो है वो फॉस्फोरिलेट किया जाता है, जिसके थ्रू जो RNA पॉलीमरेज है वो इलोंगेशन में एंटर कर जाता है और यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो जाती है। मीन्स जो इंट्रोन है, जो नॉन कोडेड सीक्वेंस है वो कट डाउन कर दिए जाएंगे और एक्सॉन्स वाली जो mRNA जीन है वो सेपरेट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो PTEFB है उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। पहला तो फंक्शन उसका ये है कि वो RNA पॉलीमरेज सेकेंड की CTD जो डोमेन है उस पर बाइंड हो जाता है और सीरीन 2 पोजिशन में फॉस्फोरिलेशन कर रहा है। दूसरा उसका है फॉस्फोरिलेट करना और एक्टिवेट करना अनदर प्रोटीन को, वो है SPT5। ये SPT5 जो है वो इलोंगेशन फैक्टर है। और तीसरा जो PTEFB का जो रोल है वो है TAT SF1। ये भी एक इसकी रिक्रूटमेंट, TAT SF1 की रिक्रूटमेंट, ये भी एक इलोंगेशन फैक्टर है। तब जाके जो हमारा PTEFB है वो इलोंगेशन में एंटर करता है RNA पॉलीमरेज को। यहाँ पे जो हमारा SPT5 है वो हम एक इलोंगेशन फैक्टर है, बैक्टीरिया इलोंगेशन यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर है SPT5। यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर ये होमोलोग है और कंपेरेबल है बैक्टीरियल इलोंगेशन फैक्टर NUSG की, जो बैक्टीरिया में इलोंगेशन का काम करता है। तो यहाँ पे जो SPT5 और NUS जो 5 है ये बाइंड करते हैं RNA पॉलीमरेज की ओवरलैपिंग रीजन पे, जो किसके थ्रू कॉन्टैक्ट किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी के थ्रू इन केस ऑफ यूकैरियोट। और ये यूनिवर्सली कंजर्व ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इन ऑल 3 किंगडम, बैक्टीरिया में भी, आर्किया में भी और यूकैरिया में। और ये जो ओवरलैपिंग है मीन्स ये जो SPT5 है ये ओवरलैप कर देता है RNA पॉलीमरेज की उस साइड को जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी के थ्रू बाइंड कर रखी है। और इस बाइंडिंग के थ्रू ये इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को, जो कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, इसको रिमूव कर देता है और RNA पॉलीमरेज को इलोंगेशन स्टेट में एंटर कर देता है। तो ये जो इलोंगेशन स्टेट होती है ना, ये एक मैकेनिज्म के थ्रू होती है जिसमें जो प्री इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और जो मेडिएटर्स होते हैं उनको रिमूव करके एक नए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और नए फैक्टर्स ऐड किए जाते हैं जो इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। और जो ये इलोंगेशन में हेल्प करते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और जो नए फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड S और SPT5, जिसकी मैंने बात की है। SPT5 जो है जो होमोलोग है NUSG के, जो कंजर्व ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है बैक्टीरिया में, आर्किया में और यूकैरियोट्स में। तो जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड और SPT5 है ये इलोंगेशन फैक्टर है जो डिस्प्लेस करके जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D, A, B, C, ये E और F, जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं और टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है इन सबको हटा के और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड S और SPT5 को ऐड किया जाता है जो कि इलोंगेशन फैक्टर है। और ये स्टिमुलेट करते हैं इलोंगेशन। और ये कैसे की जाती है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये की जाती है फॉस्फोरिलेशन के थ्रू, जो कि CTD चेन पे सीरीन 5 और सीरीन 2 की फॉस्फोरिलेशन के थ्रू की जाती है। तो यहाँ पे मेन रोल किस कौन प्ले कर रहा है, PTEFB। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले हमने यहाँ पे समझा कि जो फॉस्फोरिलेशन है वही RNA प्रोसेसिंग को अफेक्ट कर रही है और वही अफेक्ट कर रही है ट्रांसक्रिप्शन की स्टेज को। तो यहाँ पे जो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैपिंग एंजाइम बाइंड हो रहे हैं, स्प्लाइसिंग मशीनरी हो रही है और पॉलीएडिनाइलेशन होती है, ये डिपेंड कर रही है फॉस्फोरिलेशन स्टेट पे जो कि CTD टेल पे है। और उसी की वजह से ट्रांसक्रिप्शन की स्टेज भी अफेक्ट हो रही है। और ये जो फॉस्फोरिलेशन है ये की जाती है PTEFB के थ्रू सेकेंड सीरीन पे और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D के थ्रू फिफ्थ सीरीन पे। और जो ये फॉस्फोरिलेशन की जा रही है इन फॉस्फोरिलेशन के थ्रू जो प्री इनिशिएशन जो फैक्टर्स थे जैसे मेडिएटर थे और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे वो तो रिमूव कर दिए जाते हैं। और इलोंगेशन फैक्टर जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड S और SPT5 ये जो हैं, और जैसे कि
spt5, ये भी एक इलोंगेशन फैक्टर है, ये ऐड किया जाता है। और एक होती है ELL फैमिली, ये भी इलोंगेशन फैक्टर है, ये ऐड किए जाते हैं। ये जो ELL फैमिली स्टिमुलेट करता है ओवरऑल रेट ऑफ इलोंगेशन। ये क्या करता है, जो पॉलीमरेज का पोजिंग टाइम है ना उसको लिमिट कर देता है, कि जो RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पे पोज हो रखा है उसको रिक्रूट कर देता है। इस तरह एडिशनल फैक्टर फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस के थ्रू ऐड किए जाते हैं और RNA प्रोसेसिंग की जाती है और डिफरेंट स्टेज में RNA पॉलीमरेज को एंटर किया जाता है कि वो डिफरेंट स्टेज को कंप्लीट करें इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे ये जो पिक्चर शो कर रही है, ये शो कर रही है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एंड जो ग्रेप है GREB, ये दोनों एनालॉगस वे में एक्ट करते हैं और एनालॉगस रिएक्शन करते हैं। जो TFS सेकंड एस है ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, जो GREB है ग्रेप है ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। जो ग्रेप बी है जो सॉरी ग्री बी है जो ग्री बी है ये एक हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग एंजाइम है बैक्टीरिया में। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एस है ये हमें पता है कि ये इलोंगेशन फैक्टर है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एस है यहाँ पे शो किया गया है और इस रीजन में जो ग्री बी है वो यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एस है वो इंजर्ट किया गया है RNA पॉलीमरेज के चैनल में और सेम यहाँ पे ग्री बी जो है वो एंटर किया गया है और इंजर्ट किया गया है RNA पॉलीमरेज के चैनल में, जिसके थ्रू यहाँ पे ग्रिप बी क्या कर रहा है, हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग मीन्स वो रोंग बेस पेयरिंग जो हो रखी है उनको रिमूव कर रहा है। और यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एस है वो क्या कर रहा है, इलोंगेशन कर रहा है। और यहाँ पे ये जो रेड कलर में शो किया गया है ये मैग्नीशियम आयन है जो बोथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एस में भी और ग्रीन बी में भी दोनों में ही वो कैटालिटिक यूनिट की तरह काम करता है। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर में शो किए गए हैं वो शो किए गए हैं कंजर्व सीक्वेंस। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर को देख के ये कंक्लूजन निकलता है कि दोनों का फंक्शन ग्रीप बी का जो कि प्रोकैरियोट्स में और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एस का दोनों का जो फंक्शन है वो सेम है और वो दोनों ही क्या करते हैं, बैक ट्रैक्ट करते हैं RNA पॉलीमरेज को। मीन्स यहाँ पे तो ये इलोंगेशन करेगा और यहाँ पे ये हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग करेगा। सो इन टूडेज वीडियो वी टॉक्ड अबाउट all these points up to fifth point, and in my upcoming video I will talk about point 6, elongating DNA polymerase must deal with histone in its path। मीन्स जब RNA polymerase इलोंगेशन करेगा तो कुछ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि आगे जितना वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन करेगा DNA सीक्वेंस की उतना ही हिस्टोन प्रोटीन के साथ उसको डील करना पड़ेगा। और इलोंगेटिंग polymerase associated with the set of proteins factor and required for various type of RNA processing, and then we will study about the structure and formation of 5' RNA capping and polyadenylation and termination and different model of termination in case of prokaryotes. These points from 6th to 10 means 5 point we are going to discuss in my upcoming video. So guys, if you like my video then please subscribe to my channel and please like my video, and if you have any query then write your comment in the description box given below. Thank you so much for watching.